الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ حاضرین، لیلۃ القدر کے حوالے سے چند باتیں کتاب و سنت کی روشنی میں سماعت فرمائیں۔ لیلۃ القدر ایک بہت قدر والی، عظمت والی رات ہے، جس کے بارے میں خالق کائنات نے خود فرمایا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ ہم نے اس قرآن حکیم کو، اس عظیم کتاب کو قدر کی رات اتارا۔ اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ قدر کی رات کیا ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے، کیا اس کی اہمیت ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے خود ہی فرمایا کہ یہ قدر والی رات، یہ عظمت والی رات، یہ خیر من الف شہر، ہزارہا مہینوں کی عبادت سے اس اکیلی ایک رات کی عبادت بہت بہتر ہے، افضل ہے۔ اب جس رات کے متعلق خود خالق کائنات یہ فرما رہے ہیں خیر من الف شہر، آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی عظمت اور اس کی قدر کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے لیلۃ القدر کی رات کو اللہ کے لیے قیام کیا، اللہ کی رضا کے لیے، نمود و نمائش، دکھلاوا، ریاکاری سے بچتے ہوئے، ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے، غفر له ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ ایک بہت بڑی عظمت ہے اس رات کی۔ اور یہ رات، جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ اس لیے معزز مہینہ ہے، مقدس ہے کہ انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن کا نزول ہوا۔ اور یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قدر کی رات اتاری ہے۔ تو ادھر سورہ بقرہ میں شہر رمضان قرآن کریم کے نزول کا مہینہ قرار دیا، اور رات لیلۃ القدر تھی۔ تو ثابت ہوا کہ اس مہینے کو یہ عظمت ملی قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے، اور اس رات کو بھی یہ قدر و منزلت حاصل ہوئی ہے قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے۔ اور یہ رات رمضان کے آخری عشروں کی طاق راتوں میں ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشروں کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ فرمایا کہ مجھے اللہ رب العزت نے یہ رات دکھلا دی تھی کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کون سی یہ رات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلائی یہ رات، تعیین کر دی باقاعدہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے مسجد نبوی کی طرف، تو دیکھا کہ دو صحابی آپس میں بحث مباحثہ کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، کسی مسئلے میں تنازع کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اختلاف کو، تنازع کو دیکھ کر میرے ذہن سے وہ تعیین نکل گئی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ اختلاف اچھی چیز نہیں ہے، مذموم ہے۔ البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحرو، اب اس کو آپ نے تلاش کرنا ہے۔ تو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں 21، 23، 25، 27 یا 29، ان راتوں میں سے کوئی ایک رات یہ قدر کی رات ہے۔ اور اس کا دورانیہ ہے غروب آفتاب سے لے کر اذان فجر تک، کیونکہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں فرمایا ہے کہ سلام ہی، یہ پوری رات ہی سلامتی والی ہے، برکتوں والی ہے، رحمتوں والی ہے، بخشش والی ہے، خیر من الف شہر ہے، سلام حتی مطلع الفجر، غروب آفتاب سے لے کر یہ رات سلامتی والی ہے، حتی مطلع الفجر، طلوع فجر تک، اذان فجر تک۔ تو اس سے کچھ لوگ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ رات کا کچھ ایک پیر ہے اور درخت بھی سجدے کرتے ہیں، اور کچھ لوگ باہر نکل کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ساری کہاوتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ غروب آفتاب سے لے کر حتی مطلع الفجر تک یہ پوری رات سلامتی والی، اور اس کے ہر تمام اوقات، تمام لمحات یہ برکتوں اور رحمتوں والے اور مغفرتوں والے اور خیر من الف شہر ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے اعزاز اور اکرام اور انعام امت مسلمہ کو عطا کر رکھا ہے۔ تو یہ جو رات ہے
इस रात की कई खसूसियात हैं। एक खसूसियत तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह बयान फरमाई कि ये लैलतुल कदर है, कि बहुत कदर व कीमत वाली रात है, और इतनी कदर व कीमत खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। और एक इसकी खसूसियत यह है कि सलामुन हिया, ये सलामती वाली रात है। एक इसकी खसूसियत यह है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर, कि इस रात को फरिश्ते और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आते हैं। और एक इस रात की खुसूसियत ये है कि जैसे कि दूसरे कुरान करीम में सूरह दुखान में फरमाया कि जहां अल्लाह रब्बुल फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस कुरान करीम को बाबरकत रात उतारा है। और वहां फरमाया फ़िया युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम, इसमें बड़े मजबूत और ठोस फैसले होते हैं। और यहाँ इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र में फरमाया तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अमर। तो अमर का माना है बड़े मजबूत फैसले और हुक्म यहाँ इस रात को होते हैं। तो जैसा कि हदीस में भी है कि इस रात को एक साल की तकदीर लिखी जाती है, बड़े मजबूत फैसले किए जाते हैं, इसलिए ये रात बरकतों वाली है। तो कुछ लोगों ने इस रात को, लैलतुल कद्र को, शबे बरात को और कद्र वाली रात को रमज़ान से निकालकर शाबान की 15 तारीख बना दी है। हालांकि शाबान की 15 तारीख शबे बरात, जिसे कहा शब का माना फारसी में रात को शब कहते हैं, और बरात अरबी का लफ्ज़ है जिसका माना है बरी ज़िमा हो जाना। तो जो लैलतुल कद्र है वही शबे बरात है, वही जहन्नम से बरी होने वाली रात है, और वो लैलतुल कद्र रमज़ान के आखिरी अशरे की रातों में है। बाकी शबे कद्र जो लोगों ने बना ली है शाबान की 15 तारीख, ये हकीकत में वो लैलतुल कद्र ही है। इसकी अहमियत लोगों के सहन से निकल गई, और आज हमारे यहाँ लोग लैलतुल कद्र की इतनी कदर नहीं करते जितनी शबे 15 शाबान की कदर करते हैं। और कुछ लोग तो खुराफात वगैरह वहाँ करते हैं, और चरागां किया जाता है, और इसी तरह पटाखे चलाए जाते हैं, और माल का ज़िया है और लोगों का नुकसान है। तो बहरहाल लैलतुल कद्र ये रमज़ान के आखिरी अशरे में ताक रातों में एक रात है, और ये पूरी रात है, इबादत की रात है। हज़ार महीने की इबादत एक तरफ और इस रात की इबादत एक तरफ, और ख़ास तौर पर इसकी बड़ी ये अज़मत ये है कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, के फरिश्ते भी इस रात आसमान से उतर कर दुनिया में आते हैं, और जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसी अजीम हस्ती भी दुनिया में आती है, जैसे कुरान हकीम में है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लामा अलबानी ने इस हदीस को सही जामे सगीर में नकल किया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लैलतुल कद्र को जो फरिश्ते आसमान से दुनिया में आते हैं, जो इसके अलावा आम नहीं आते, यानी कुछ फरिश्ते तो ऐसे हैं जिनकी दुनिया में ड्यूटियां हैं, किरामन कातिबीन हैं, बेशुमार ड्यूटियां हैं फरिश्तों की, लेकिन लैलतुल कद्र को जो फरिश्ते स्पेशल इस रात दुनिया में आते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनकी क्या तादाद है। फरमाया जैसे अरब में आलज सहरा के टीले हैं, आलज सहरा रुबो 1/4 सऊदी अरब में खाली इलाका है जिसे सहराए अरब कहा जाता है, और वो बहुत बड़ा है। फरमाया आलज सहरा के टीलों के रेत के जर्रों के तादाद के बराबर फरिश्ते दुनिया पे आते हैं। आप अंदाजा कीजिए, एक सहरा के एक टीले के रेत के जर्रों को कोई दुनिया का कंप्यूटर शुमार नहीं कर सकता। सारी दुनिया के इंसान उसको गिनना चाहें, शुमार करना चाहें, नहीं कर सकते। वो अरबों की तादाद में रेत के जर्रे होते हैं। फरमाया आलज सहरा बहुत बड़ा सहरा है और बहुत ज्यादा टीले हैं, इन टीलों के रेत के जर्रात के बराबर फरिश्ते दुनिया में आते हैं। इतनी अजीम रात है ये, अल्लाह की इबादत के लिए अल्लाह ने ये रात मुसलमानों को अता कर रखी है। तो मेरे भाइयों, ये फुर्सत के लम्हात हैं, ये कोई तमाशा नहीं। लोग आजकल इस रात को तमाशा करते हैं, गुनाह करते हैं,
वक्त ज़ाया करते हैं, कुछ लोग बाहर निकल कर नज़ारा करने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये इबादत की रात है। और फिर कुछ लोग वो अपने तौर पर इसको मखसूस करने की कोशिश करते हैं। कोई कहता है जी ये 27वीं रात है, इसीलिए अक्सर हमारे यहाँ देखा गया है कि लोग बाकी रातों को छोड़कर सिर्फ 27वीं रात को ही वो ख़त्म कुरान भी करते हैं, वो कुछ नवाफल भी पढ़ते हैं, या कुरान की कोई तिलावत कर, कोई ज़िक्र अज़कार कर रहे होते हैं, और बाकी रातों को छोड़ देते हैं। इसी तरह कुछ लोग 23वीं को कहते हैं, कुछ 25वीं को, किसी मुख्तलिफ। लेकिन इसमें हिकमत ये थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन से इसको माफ़ करवा दिया। हिकमत ये थी कि इस बहाने से मुसलमान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर लें, बल्कि मुसलमान को तो चाहिए कि आखिरी अशरे की तमाम रातें, वो ताक हों या जुफ्त, वो अल्लाह की इबादत में गुजार दे। जैसे मैंने हदीस बयान की बुखारी मुस्लिम की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शद्दा मेज़रहू, कमर कस हो जाते, आप खूब मुस्तैद और तैयार हो जाते, और अहया लैलहू, आप इस पूरी रात को जिंदा किया करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आम मामूल नहीं था पूरी रात इबादत करना, आप आराम भी करते थे, अपने नफ्स का हक भी आपने फरमाया कि अदा करना चाहिए। लेकिन रमज़ान के आखिरी अशरों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की इबादत मुस्तैद होकर, तैयार होकर किया करते थे। तो हमें भी इन चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए कि ये कौन सी रात है, बल्कि हमें आखिरी अशरे की तमाम रातों को ही अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, और ख़ास तौर पर जितनी भी ताक रातें हैं इनको। अब देख लिए, नेकी का जब मौका आता है तो हम उस एक रात को, 5 रातों में से एक रात को तलाश करने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि अगर कोई शख्स हमें 5 चाबियां दे दे कि ये 5 चाबियां हैं आपके सामने, और ये फलां खजाने की चाबियां हैं, आप इन 5 चाबियों को ले जाओ, या इनमें से कोई एक चाबी ले जाओ, और ये जितना खजाना है, अरबों खरबों रुपए का खजाना, माल और दौलत, हीरे जवाहरात, सोना चांदी, ये सब आपका है, और ये 5 चाबियां हैं आपके लिए। तो क्या ख्याल है कि मैं उन 5 चाबियों में से कोई एक चाबी लूंगा? यकीनन सामने बहुत बड़ा खजाना, हीरे जवाहरात, लाल और गोहर से वो मौजूद है, तो मैं कोई एक चाबी नहीं उठाऊंगा। मेरी अकल, मेरी दानिश मुझे ये कहेगी कि पूरी चाबी 5 उठा लो, अगर ये ना लगी तो ये लगेगी, अगर ये ना लगी तो ये लगेगी, तो मैं पूरी 5 चाबियां ही ले जाऊंगा, एक नहीं उठाऊंगा। लेकिन जब नेकी का मामला आता है तो हम फिर एक रात तलाश करने की कोशिश करते हैं, और उस एक रात को भी हम ज़ाया कर देते हैं। तो इसलिए मेरे भाइयों, हमें इस रात की कदर करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसे फरमाया लैलतुल कदर है। आखिरी मसला ये मैं बयान करता हूं मुख्तसरन कि इस रात की क्या निशानियां हैं। मेरे भाइयों, एक तो बड़ी निशानी ये है कि जब तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा युफ़रक़ु कुल्लु अम्रिन हकीम अम्रन मिन इंदिना, तो जब इतने फरिश्ते और जिब्रील अलैहिस्सलाम जो रूहुल अमीन हैं, वही लाने वाले फरिश्ते हैं, वो दुनिया में आते हैं, तो उस रात में राहत, सुकून, इत्मीनान कितना ज़्यादा होगा, कितना सुकून होगा। ये हकीकत में जो लोग अल्लाह की इबादत करने वाले, उन्हें ये सुकून नसीब होता है। ये एक बहुत बड़ी निशानी है। और एक निशानी ये है कि इस रात हल्की फुल्की बूंदाबांदी होती है, कभी महसूस होती है और कभी नहीं। अगर कोई ऐसी रात को बूंदाबांदी नहीं तो कोई ये ना समझे कि शायद लैलतुल कदर ही नहीं हुई, लेकिन उमूमन ऐसा होता है। और एक निशानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को बतलाई, जो कि अबू दाऊद, सुनन नसाई में, इब्न माजा में हदीस मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस रात जो लैलतुल कदर होती है, उस दिन सुबह जब सूरज तुलू होता है तो उसकी शुआओं में, उसकी किरणों में तमाज़त और हिद्दत नहीं होती, वो ठंडी होती हैं। और फरमाया कि सूरज तुलू होता है जिस तरह के एक थाली होती है, उसके किनारों की तरह या तस्त की तरह सूरज जो है वो तुलू होता है, और उसमें वो किरणों में वो शुआएं में तेज़ी नहीं होती, इंसान देख भी सकता है। और ख़ास तौर पर ये कि राहत, सुकून, इत्मीनान इंसान के नफ्स को बहुत मिलता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और हर मुसलमान मर्द औरत को इस रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए, और बल्कि आखिर रमज़ान के तमाम ही रातें हमारे लिए वो एक बहुत अजीम सुनहरी मौका हैं, दिन हो या रात,
یہ ایک بہت سعادت ہے اس مسلمان کے لیے. پورا مہینہ ہی برکتوں والا، رحمتوں والا اور مغفرتوں والا، جہنم سے آزادی والا، اور ہر رات اللہ کی طرف سے منادی ہوتی ہے، کوئی ہے رزق مانگنے والا، کوئی ہے مغفرت طلب کرنے والا، کوئی ہے شفا مانگنے والا، کوئی ہے اولاد مانگنے والا. لیکن وہی علامہ اقبال کا شعر، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. آج مسلمان جو ہے وہ اصل حقیقت کو چھوڑ کر، اللہ کی عبادت کو چھوڑ کر وہ دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں. تو ہمیں ان اللہ کے عظیم دی ہوئی بہاروں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بلکہ یہ بہاریں لوٹ لینی چاہیے. یہ نیکیوں کا سیزن ہے. اللہ دین کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.